Hello, my dear students. Good morning. Jai Shri Krishna. Myself Raju sir, and I heartily welcome to you in my educational YouTube channel, AIM Education. So, my dear students, today we are going to start our new chapter, and that is chapter number 14, standard 12th, biomolecule. Actually, it is very easiest chapter for the student of group B, but it is more difficult chapter for student of group A. But actually, in this topic we will discuss the specific points. बच्चों, स्टैंडर्ड 12th एंड स्टैंडर्ड 11th में से गुजरात बोर्ड में से कई टॉपिक्स निकाल दिए गए, आपने पता है आपको और आपने सुना भी है, ठीक है। सो ये चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ने भी है और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हम नहीं पढ़ने वाले गुजरात बोर्ड के लिए, और उसका इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत कम है, मगर जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो हम जेडब्ल्यू नीट के लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली when we classify the carbohydrates, then we can classify it into three parts mainly: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. But we will discuss in this chapter only monosaccharides, not oligosaccharide and polysaccharide, because it is removed by the Gujarat government board, right? Okay, so we will discuss the carbohydrates, and then first point of this carbohydrate point is classification of carbohydrates and only monosaccharide. And in this monosaccharide we will discuss on the basis of glucose and fructose, preparation of glucose, structure of glucose, cyclic structure, acyclic structure, right? Then after, second topic is protein. Protein is also one type of biomolecule, and we will discuss what is amino acid in this topic. Then after, classification of amino acids and structure of proteins. Actually, on the basis of the structure, there are two types of proteins are available: fibrous and globular. Fibrous protein and globular protein. But there are another three types of proteins are possible: primary, secondary and tertiary proteins. Primary, secondary and tertiary structure of protein. But यहाँ हम ये देखने वाले नहीं है, क्योंकि गुजरात बोर्ड में से ये भी पॉइंट निकाल दिया है। देन आफ्टर, विटामिन्स, हॉर्मोन्स यहाँ पे है ही नहीं। एक्चुअली एनसीईआरटी में वो टॉपिक दिए गए हुए विटामिन्स, हॉर्मोन्स, देन आफ्टर एंजाइम्स, मगर सभी के सभी पॉइंट एनसीईआरटी में से ये साल के लिए डिलीट कर दिए, ठीक है। मतलब आप लोगों को जो टिपिकल पॉइंट देखने मिलने वाले थे, जो थे विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, वो सभी के सभी निकाल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है चैप्टर में, स्पेशली ए ग्रुप के स्टूडेंट को। बी ग्रुप वाले सभी इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर ए ग्रुप के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया हमारे गुजरात बोर्ड में, ठीक है। So last third topic is nucleic acid. Actually deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. We will discuss the structure of nucleic acid. What is the basic requirement to produce the nucleic acid? It means DNA and RNA. Ready? So we will discuss the basic point of nucleic acid and biological importance of nucleic acid in this topic. So we will see these three topics mainly. हम जितने भी पॉइंट्स डिलीट कर दिए हैं वो पॉइंट्स हम नहीं पढ़ने वाले, एनसीईआरटी में से निकाल दिए हैं, और ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जितने भी पॉइंट यहाँ से निकाले हैं वो शायद नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, मगर जो इंपॉर्टेंट है, शायद पूछने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, मगर जेडब्ल्यू नीट के सेशन में। सो let's start the chapter number 14, biomolecule. So first of all, what is biomolecule? Actually, carbohydrates, vitamins, proteins, lipids, fatty acids, right, hormones and enzymes, all of these kind of non-living molecules or atoms are known as biomolecules. But all of these biomolecules are composed by microorganisms, living things. Ready? So we can say the non-living things or non-living molecules or atoms
like carbohydrates, vitamins, proteins, nucleic acid, etc., which are composed by the living organisms, microorganisms. That type of non-living molecules are known as biomolecules, and they are very essential, वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स. जितने भी इंसान, या तो सोच लो, या तो कोई जानवर सोच लो, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लो, सभी के सभी जितनी भी लिविंग थिंग है ये यूनिवर्स में, उन सभी को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बायोमोलेक्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Amongst these biomolecules, carbohydrate is useful to produce energy. Protein is useful to maintain biological system, biological process, enzymatic processes. Ready? Then after vitamins, almost vitamins are act as a coenzymes, right? And then after nucleic acid, it maintain heredity. मतलब जितने भी जनरेशन है, वो जनरेशन में उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन करने के लिए, जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, उसके लिए न्यूक्लिक एसिड ही रीजनेबल है. ठीक है. सो ये सभी के सभी बायोमोलेक्यूल्स के बारे में हम ये टॉपिक में देखने वाले, ये चैप्टर में देखने वाले, मगर इसमें से विटामिन्स, हॉर्मोन्स, देन आफ्टर लिपिड्स, ये सभी के सभी पॉइंट ये टॉपिक में से, ये चैप्टर में से निकाल दिए. तो हम ये नहीं देखेंगे. मैं पहले से आपको बोलता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखने वाले हैं जेडब्ल्यू नीट के सेशन में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट. So my dear students, let's start the first point, carbohydrates. Actually we can say the almost carbohydrates occurs from the nature. It means they are formed by different types of plants. But actually carbohydrates are the large family of different molecules which possess carbon, hydrogen and oxygen only. मतलब सभी कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ 3 ही टाइप के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड ऑल्सो बाय द मोलिकुलर फॉर्मूला. सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चरल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा. वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाइड करेंगे इसके बाद के टॉपिक में, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो there are some important and most common carbohydrates are sucrose, it means sugar, table sugar we can say, which is formed by the cane sugar. We can prepare from the cane sugar, juice of cane sugar. Then after glucose, lactose sugar is present in the milk. Then after starch, which is almost most of starch is present in potatoes and wheat also. Then after cellulose is pure form of cotton. Actually cotton is one type of cellulose. All of that type of carbohydrates are most useful. But the general formula of carbohydrate, you can see here, starch, the molecular formula of starch. Actually starch is one type of polysaccharide. We will discuss this type of polysaccharide, monosaccharide, oligosaccharide. It means classification of carbohydrate in our next topic. But starch, the formula of starch is C6H2O5 n times, because it is a polymer. Sugar means cane sugar. Sucrose, we can say sucrose also, C12H22O11. So I can write this molecular formula of sucrose by this way also, C12H2O11. So you can see here 11 2s are 22 and 11O. Then after glucose, C6H12O6, we can write by this way, C6H2O6 times. Ready? So by using this formula we can say, sir ये सभी के सभी तो हाइड्रेट्स फॉर्म है कार्बन के. देखिए ये सभी के सभी कार्बन के हाइड्रेट फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे. कार्बन के साथ H2O कनेक्टेड है, यहाँ पे कार्बन के साथ H2O कनेक्टेड है, यहाँ पे कार्बन के साथ H2O कनेक्टेड है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोलिकुलर फॉर्मूला, on the basis of this molecular formulas of different types of carbohydrates, different types of organic molecules of this type of specific. But you can see in all of this example we can write on the basis of hydrates of carbon. So the name of this compound
गिवन एज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये सभी के बेस पे इसे बोले जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, मैनोज, गैलेक्टोज, सभी के सभी, स्टार्च, सेल्यूलोज, सब कार्बोहाइड्रेट्स है। क्यों? तो क्या आप सोचोगे कि सर उसका जब आप मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे तो आपको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट the compounds which follow the definition of carbohydrate on the base of this molecular formula, hydrates of carbon, ready? Carbohydrates word coming from hydrates of carbon, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के बेस पे आप बोलोगे कि सर जिसकी भी मोलिकुलर फॉर्मूला इसके जैसे आपको देखने को मिले तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इट मींस दे पोजेस ऑलमोस्ट स्वीट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स का स्वीट टेस्ट होता है, मगर जब वो मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड फॉर्म में होते हैं। जब वो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा उसका, तो वो बन जाएंगे टेस्टलेस। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पॉलीमराइजेशन होती है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, सब हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये आज जानना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स बोला कैसे, बोला क्यों बोला। अगर कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हो तो अभी ये सही बोलना है या गलत है, वो हम देखने वाले आज, ठीक है। So all of these carbohydrates are known as carbohydrates only because of their molecular formula looks like hydrates of carbon. Okay, so on the base of this point, base of this definition, we can say the compounds, organic compounds which follow this definition of carbohydrates, then they will also act as a carbohydrate, right? So let's see the examples. Suppose I have CH3COOH. Actually it is an acetic acid and the molecular formula is C2H4O2. We can write also C2H2O twice. This compound follow this definition of carbohydrate, but it is not carbohydrate. Actually it is acid, carboxylic acid. It is acid. It has no sweet taste. इसका स्वीट टेस्ट नहीं है। आप सब जानते हो ये एसिड है, एसिड का स्वीट टेस्ट नहीं होता। तो आप बोलोगे कि सर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए आप, C2H2O ट्वाइस है, ये तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लग रहा है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली आप सोचो ये एसिडिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलो। CH3 COOH COH H C3H6O3. Actually this is the structural formula, this is the molecular formula. So we can write this molecular formula also like this one, C3H2O3. This molecular formula also obeys this definition, hydrates of carbon, but it is a lactic acid. It is present in buttermilk and also in curd. So lactic acid is not sweet, buttermilk is not sweet. Actually it is acidic, but this compound follow this this definition of carbohydrate, but it is not carbohydrate. तभी दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि सर अगर ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट इसके बेस पे ही बोले जाते हैं तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए इनके जैसी ही होती है। मगर ये सब क्यों कार्बोहाइड्रेट है, ये क्यों कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तभी पता चला कि ये जो पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स
इसे कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मोलिकुलर फॉर्मूला देख के ऐसा लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसा शो करता है कि जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो सकता है, C6H2O6 हो गया C6H4O6, C12H2O11 हो गया C12H22O11, C6H2O5 हो गया स्टार्च। एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है एक्चुअली प्रैक्टिकली वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है ही नहीं। इसके बेस पे गलत हो गया। अगर ये सभी के सभी जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते तो ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन तो दोनों की सेम होती है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट ऑल ऑफ दीज आर एसिड्स, बोथ ऑफ दीज आर एसिड एंड ऑल ऑफ दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर कंपाउंड्स, सैकेराइड कंपाउंड्स। तो तभी पता चला कि यार कार्बोहाइड्रेट्स बोल दिया ये टॉपिक के बेस पे कि शायद ये हो सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मगर है नहीं। फिर भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अभी बोल दिया तो बोल दिया, अभी वापस नहीं लेंगे हम। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र जैसा है कि एक बार चला दिया तो चला दिया, अभी वापस लेने को उसको आता नहीं है। तो वो क्या करेगा कि चलो ठीक है जाने दो, ऐसे ही इसे बोल दिया कार्बोहाइड्रेट्स ये पॉइंट के बेस पे, मगर एक्चुअली ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड कहां से आया। वो साइंटिस्ट ने वो टाइम पे देख लिया कि चलो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो सकता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, चलो। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला देख के ऐसा लगता है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। उसका मतलब जो भी मोलिक्यूल, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फॉर्मूला को फॉलो करते हो वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, वो टेस्ट में स्वीट होने चाहिए। अगर वो मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड है तो ठीक है। अभी वो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड क्या है मैंने पहले ही बताया, आप बाद में हम देख लेंगे। मगर बहुत सारे मोलिक्यूल्स ऐसे भी है कि जो ये डेफिनेशन को, कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड को फॉलो करते हैं, मगर वो कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी ही टोटली डिफरेंट है, कि ये सब तो एसिड निकले। तो मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड हमने दे दिया, वो गलत दिया, मगर चलो ठीक है अब इन सभी को कार्बोहाइड्रेट बोल दो। तो कोई ऐसा भी बोलोगे, चलो ठीक है सर, सब बहुत कुछ एक्सेप्शनल होते होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं मगर प्रॉपर्टी को नहीं। मगर हमने ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट यहां पे तो देख लिए, ठीक है, ये हमने देख लिया ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने यहां पे देख लिए। अभी ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स इसको तो फॉलो करते हैं, तो इसको जहन में रख के हम ये बात बोल सकते हैं कि चलो कुछ एसिड ऐसे है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं मगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, मगर ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स इसको फॉलो करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट है। तो हो सकता है कि कुछ एसिड ऐसे हो जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है मगर ये डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। मगर शायद सोच लो, शायद सभी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जैसे लगे। उसका मतलब ये पूरा का पूरा गलत है, ऐसा सोचना नहीं है अभी। तो चलो मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूं आपको, उसके बाद डिस्कस करते हैं। बट रैमनोज कार्बोहाइड्रेट, रैमनोज, इट इज वन टाइप ऑफ शुगर, रैमनोज मोलिकुलर फॉर्मूला is C6H12O5। कहां गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कहां गया मुझे बताओ। अगर ये 6 होता तो मैं मान लेता कि चलो इसके जैसा है, अब यहाँ पे तो 5 है। अभी मैं ऐसे कैसे लिखूं, C6H2O5 कैसे लिखूं भाई। अगर मैं ये 5 लिखता हूं ऐसा तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 10, यहाँ तो 12 है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं चलो 6 तो ये हो जाएंगे 12, तो ये हो गया 5, मान लिए तो 6 है। उसका मतलब इट इज अ रैमनोज, इट इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट this molecular formula does not follow this definition। ये definition को follow नहीं करता भाई, ये definition को follow नहीं करता। it is not hydrates of carbon but it is carbohydrate। उसकी प्रॉपर्टी इन लोगों के जैसी है, सभी की सभी पूरी प्रॉपर्टी इन लोगों के जैसी है। ये कार्बोहाइड्रेट ही है, प्रॉपर्टी भी उसकी जैसी है, मगर इसको फॉलो नहीं करता। अगर आप बोल रहे हैं कि सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट से वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, तो ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होना चाहिए। ये तो नहीं निकला, कार्बोहाइड्रेट है। तो सोचो कि चलो एक्सेप्शनल है, ये शायद एक आध आ जाता होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डीऑक्सीरिबोस जो डीएनए में यूज होता है,
कहाँ गए, यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि आप C5H2O4 तो लिख नहीं सकते। अगर H2O4 लिखते हो तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, अगर H2O5 लिखते हो तो ऑक्सीजन 5 होने की हो जाएंगे, यहाँ तो 4 है। तो डीऑक्सीरिबोज भी एक शुगर ही है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है, मगर ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। तो ये बात से हम क्लियर कर सकते हैं कि चलो ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन दी गई थी, ये एक्चुअली वर्ड बोले थे कार्बोहाइड्रेट इन सभी मोलेक्यूल्स को, क्या देख के उसके मोलेक्यूलर फॉर्मूला में उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। चलो ठीक है, अभी हम गलत हो गए तो हो गए, मगर नाम तो अभी यही लिखना होगा। तो ये सभी के सभी मोलेक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स, मगर ये डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्चुअली एक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है, याद रखना है, ठीक है। सो सम एक्सेप्शनल एग्जांपल्स व्हिच कैन नॉट फॉलो द carbohydrate definition on the basis of molecular formula, and that is rhamnose and deoxyribose. Most important, MCQ के लिए important है। And some important carboxylic acid which follow the definition of carbohydrate, but they are actually acids, not carbohydrates. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के बेस पे आया, बट एक्चुअली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो actually all the carbohydrates mainly possess only 3 types of atoms, elements: carbon, hydrogen and oxygen. But each and every carbohydrates are differ from each other on the basis of molecular formula, right? So actually the carbohydrates possess either aldehyde functional group or ketone functional group, but both of that type of carbohydrates in which aldehyde or ketone functional groups are present possess so many OH functional groups. मतलब या तो aldehyde या तो ketone होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, दोनों नहीं होंगे, या तो aldehyde होगा कार्बोहाइड्रेट मोलेक्यूल में या तो ketone होगा फंक्शनल ग्रुप, और इन दोनों के सिवा बहुत सारे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, ठीक है। सो वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स टू दिस कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वन, aldose sugar and ketose sugar. The carbohydrate which possess aldehyde functional group with CHO aldehyde functional group, then they are known as aldose sugars, aldose carbohydrate, aldose sugar. And the carbohydrate which contains CO functional group, CO, then they are known as ketose functional group. Ketose carbohydrates. So actually carbohydrates possess 2 different types of functional group. Either they possess aldehyde functional group and or they possess ketone functional group. But if it possesses the aldehyde functional group, then it is known as aldose sugar, aldose sugar. And if they possess ketone functional group, then it is known as ketose sugar. For example, CH2OH, CHOH, CHO. Glyceraldehyde is one type of aldose sugar, but actually it is a carbohydrate, my dear, carbohydrate. A glyceraldehyde is one type of carbohydrate where CH2OH, C double bond O, CH2OH, it is dihydroxypropanone, is one type of ketose sugar. It is a aldose sugar, it is a ketose sugar. Next example, और एक example आपको देता हूँ, C6H12O6, दोनों के दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही रहेगी। देखिए C3H6O3, यहाँ पे भी C3H6O3. Next example, glucose. Glucose CHO, CHOH, 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 CH2OH. You can see there are 5 OH functional groups are present in glucose and 1 aldehyde.
where ketone, I'm sorry, not ketone, fructose, फ्रुक्टोज आपको मिलेंगे जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं उसमें से आपको फ्रुक्टोज मिलेगा, ग्रेप्स में से भी आपको फ्रुक्टोज मिल जाएगा बहुत सारे प्रोपोर्शन में, ठीक है। C6H12O6 in fructose also molecular formula similar to glucose C6H12O6, but the structural formula is CH2OH, C double bond O, CHOH, 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 CH2OH। तब देख सकते हो ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूलाज सिमिलर है, मगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है। सो ग्लूकोज हमारा हो जाएगा अल्डोज शुगर और कीटोन हमारा हो जाएगा कीटोज शुगर, अल्डोज कीटोज। मगर हमें इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है ये सभी पॉइंट हम क्लासिफिकेशन के पॉइंट के बाद देखेंगे। मगर आज हमने सिर्फ क्या देखा, बायोमोलेक्यूल का मतलब क्या होता है, कौन से नॉन लिविंग थिंग्स बायोमोलेक्यूल्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाई वी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच possess कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, some exceptional cases, and then after the carbohydrates possess only two type, mainly two, they differ from each other by on the basis of functional group, aldehyde and ketone. The carbohydrates which possess aldehyde, then they are known as aldose sugar, and the carbohydrate which possess ketone functional group, then they are known as ketose sugar. मैंने आपके सामने एग्जाम्पल पे लिख दिया, यहाँ पे ग्लिसराल्डिहाइड है और यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है या तो डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनोन है या डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनोन कीटोज शुगर है क्योंकि यहाँ पे कीटोन है, ग्लिसराल्डिहाइड है वो अल्डोज शुगर है क्योंकि यहाँ पे वो अल्डिहाइड है, ग्लूकोज इज वन टाइप ऑफ अल्डोज शुगर, कीटो एंड फ्रुक्टोज इज वन टाइप ऑफ कीटोज शुगर, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, in our next lecture we will discuss about the classification of carbohydrates and nomenclature of carbohydrates, right? So till that lecture, goodbye, take care, Jai Shri Krishna.